दिस इज डॉक्टर श्वेता मलानी, योर बायोलॉजी कोच, एंड आज हम क्लास 10 का जो टॉपिक पढ़ने जाने हैं वो है न्यूट्रिशन। इन माय प्रीवियस क्लास, एज यू नो, दिस इज माय सेकंड लेक्चर ऑन लाइफ प्रोसेसेस। बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर आपके सिलेबस में है वो है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर 6, और इसका ये हमारा सेकंड लेक्चर है। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। So we know that life processes include basically 4 processes: nutrition, respiration, transportation and excretion. So today we are going to start the first life process, that is nutrition. As we know, what is nutrition? Normally हम बोलते हैं nutrition is the process by which we take energy in the form of food from the outside to the inside. वो प्रोसेस जिससे हम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड लेते हैं and we use it for growth and repair. The entire process of taking in a food and using it for growth and repair, that is called as nutrition. This we learnt it in our previous class. But today I will want to first start with the concept of food once again. What is the food we eat? अभी जैसे मैंने आपको बोला तो हमने ये देखा कि फूड वो चीज है, ये एक आउटसाइड सोर्स है ऑफ एनर्जी जिसको हम अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। सो दिस सोर्स, आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब दिस द प्रोडक्ट, द ऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे एक आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी को बॉडी के अंदर में लिया जाता है, उसको हम फूड कहते हैं। सो लेट अस सी, हमारा ये जो फूड है, हमने कहा कि दिस हेल्प्स अस टू टेक एनर्जी इनसाइड आवर बॉडी फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स। ये जो सोलर एनर्जी है इसको हम फूड के फॉर्म में पैक करते हैं, and then food is the form in which this energy actually enters our body. पर मैं आपको एक चीज बता दूं, फूड से हमें सिर्फ एनर्जी नहीं मिलता। We need energy for what? You know that? We need energy for growth and repair. Now, what do I mean by this? देखिए आपके NCERT में क्लियर कट लिखा है, कहता है कि अगर आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो आपको एनर्जी चाहिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, आपको एनर्जी चाहिए। बट अगर आप कोई काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ बैठे हुए सो रहे हैं, तो भी आपको एनर्जी चाहिए होता है। वी कॉल दैट, बिकॉज आई टॉट यू इन माय प्रीवियस क्लास, मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी हमारी बॉडी में होता है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, जिसके लिए हमको एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी का सोर्स कहाँ है? बॉडी के बाहर है, एंड फूड वो फॉर्म है जिसमें ये आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी को हम बॉडी के अंदर में लेते हैं। सो आई हैव रिटन दैट वी नीड एनर्जी, and this energy is required for growth and repair. But you will notice here that for repair and growth, you besides energy, you also need some other things. What? Say, let me make this cell. अगर ये मेरा सेल है, सपोज मुझे रिपेयर में कुछ चीज रिपेयर करनी है जिससे छोटी चीजों से बड़ा मॉलिक्यूल बनाना है। So let me do this. Say A plus B. से मुझे AB बनाना है, right? So obviously for making this, I need energy, and this energy I need in my body. But besides energy, don't you need A and B also? Don't you need A and B also? Only then with the help of energy you will form AB. Don't you need enzymes also to get this reaction done? That means the food, besides giving us energy, it also gives us other raw materials which are required for growth and repair. ठीक है, ये ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए एनर्जी के अलावा जो अदर रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, आई रिटन एनर्जी हियर, आई शुड हैव रिटन एंजाइम्स हियर। ठीक है, ये देखो, दिस इज आल्सो रॉ मटेरियल, दैट इज द एंजाइम। दीज रॉ मटेरियल्स, other than energy, yes, I need energy, but I also need certain raw materials for growth and repair. And ये raw materials भी हम कहाँ से लाते हैं? ये भी बॉडी के बाहर से हम लाते हैं। There's an external source of these materials. These materials also be needed to be put inside my body, and these materials also enter my body in the form of food. That means the food consists of not only carbohydrate, बेटा, it is a carbohydrate जो ग्लूकोज का बना है, जिसका कार्बन कार्बन बॉन्ड हमें एनर्जी देता है। But besides carbohydrate, we know that we take other products also in the form of food. We also take proteins, we also take fats, etc. So there are more than one things that we are taking from outside, and so food comprises of not only those products which actually give us energy, but it also consists of other raw materials which are required for the growth and development of our organism, right? So let me repeat it once again, then I will take you to your NCERT. Now listen,
This is very beautiful. We know that nutrition is a process by which we take in food and we use it for growth and repair. तो अगला सवाल उठता है फूड है क्या? अभी तक जो हमने पढ़ा उससे हमारे मन में ये कॉन्सेप्ट आया कि फूड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके माध्यम से द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी मूव्स इनटू आवर बॉडी. But do we take food just for that energy? No. Besides energy, other raw materials are also required in my body in the form of proteins, in the form of fats. I did not write it completely. In the form of fats, which are also required for the process of growth and repair. And these products are also taken in. They are also external. They are also taken inside the body with in the form of food. So, in short, food comprises of those things which allow the energy source and other materials required for growth and development to enter into our body. Now let us see what is there in your NCERT. I want you to see your NCERT for simple one reason. Let me tell you very clearly dear that आपके board exam में at least NCERT is the only place जहाँ से question आने वाला है. ठीक, आप बोलोगे मैम सिर्फ NCERT पढ़ा रहे हो, आपको तो NCERT भी नहीं आती, आप तो रट लेते और NCERT के बाहर भी रख लेते. You never try to develop a concept of what is written in your NCERT. Just see what is written in the first paragraph of nutrition. Please open page 95 of your NCERT and you will see when we walk or ride a bicycle we use energy. Even when we are not doing anything we need energy, right? But besides energy, I'm changing the color of my pen, we also need materials from other materials from outside to grow, develop, synthesize proteins and other substances. All these sources of energy and material. Please notice, food is not only the source of energy, but all these sources of energy and these other materials which are required for growth, all this constitutes our food, right? So सबसे पहले nutrition is the process by which we take in food, ठीक, for growth and repair. तो पहला सवाल जो हमारे मन में उठना चाहिए था वो ये था कि आखिर food क्या होता है? So food is those things which allow the external energy source and other materials required for growth of development to enter into my body. That constitutes the food. So the next question is, as you can see, how do living organisms take this food? उनको ये food मिलता कैसे? So now listen to me once again carefully. There are some organisms, right, जो ये food को अपना they make it on their own. Just look at the points I am writing. 1. They make it on their own, right? Very good. They make it. लेकिन जब बनाएंगे तो क्या चीज से बनाएंगे, right? With the help of simple inorganic materials. With the help of simple inorganic materials, they make their own food. These organisms are called as autotrophs. Auto means self, right? And troph means food. Since they make their own food from simple inorganic material, they are called as autotroph. And the process involved in making this, the process is called as photosynthesis. I want you to understand everything very carefully. Photosynthesis. The organism is autotroph, but the process is photosynthesis, right? But there are certain other organisms which do not make their own food. Rather, they take the food from an outside source. They take it from outside source, from others, that is plants. Directly or indirectly, they are taking it from plants. And since the food which they take is complex, what they do is they break this complex food into simple forms, that is into the form of glucose, so that it can be utilized by their body. These organisms which do not make their own food but they depend on other organisms for their food, these are called as heterotrophs. These are called as heterotrophs, right? And what is their mode of nutrition called as? या तो मैंने लिखा these are autotroph and their mode of nutrition is photosynthesis. Then what is their mode of nutrition called as? This I am going to tell you. Wait. First,
दिस आई हैव केप्ट इट ब्लैक, आई एम गोइंग टू टेल यू। उससे पहले देखिए, ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में ब्रेक डाउन करते हैं, एज आई टोल्ड यू। जब ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में ब्रेक करते हैं, दिस इज माय कॉम्प्लेक्स फूड। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फूड? आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस क्लास, दिस इज स्टार्च अगर वो प्लांट फूड खा रहे हैं, एंड दिस इज ग्लाइकोजन अगर वो एनिमल फूड खा रहे हैं। ठीक है, अगर वो एनिमल फूड खा रहे हैं तो ये ग्लाइकोजन है। अब ये इस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करेंगे इनटू सिंपल फॉर्म, दैट इज दे आर गोइंग टू ब्रेक इट इनटू ग्लूकोज। ये ब्रेक डाउन करने के लिए इनको क्या चीज की जरूरत है? दे रिक्वायर एंजाइम्स। व्हाट आर एंजाइम्स? आई एम गोइंग टू टीच यू सेपरेटली। जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल फूड ग्लूकोज, एंड प्लांट्स खुद ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज बना लेते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, एंड एनिमल्स ये प्लांट्स को खाते हैं एंड वो उससे कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, एंड इसको एंजाइम की मदद से ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक, सो दीज आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रोफ्स। अब आप बोलोगे मैम अभी तक आपने प्रोसेस नहीं बताया। हाँ, नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? यहां पर पहले देख लो, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए नहीं बताया कि मैंने कहा कि हेटेरोट्रोफ अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो खाने को ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अगला सवाल उठता है, ये एंजाइम कहां बनेगा? वेयर विल दिस एंजाइम बी फॉर्म? अगर ये एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर बनता है, दैट मींस आई एम टेकिंग द फूड इनसाइड, बॉडी के अंदर हम एंजाइम की मदद से फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, then this type of organism, this type of heterotrophic organism is called as holozoic nutrition. Holozoic में क्या होता है? The food is taken, I take whole food inside holozoic, and these enzymes are found within my body. मेरे बॉडी के अंदर एंजाइम्स इस फूड को ब्रेक डाउन करके फिर इस ब्रोकन डाउन फूड ग्लूकोज को अब्सॉर्ब किया जाता है। These are called as holozoic. ठीक, अब आ जाओ, अगर ये एंजाइम हम बॉडी के बाहर बनाते हैं, खाना तो बाहर से ले रहे हैं ना, होलोजोइक क्या करते हैं? खाने को बॉडी के अंदर डालते हैं और अंदर में एंजाइम बनाते हैं। दूसरे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, दे आर कॉल्ड एज सैप्रोजोइक, एंड सैप्रोजोइक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? ये यहाँ पर खाना बाहर से ले रहे हैं, ये एंजाइम बाहर बना देते हैं। भाई बॉडी के बाहर एंजाइम बना दिया और बॉडी के बाहर एंजाइम की मदद से इस फूड को हम ब्रेक डाउन करते हैं। जब मेरा फूड ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके बाद हम ब्रोकन डाउन फूड को अंदर लेते हैं। यानी कि दोनों केसेस में हम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक डाउन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, बट एक केस में द एंजाइम इज फॉर्म्ड आउटसाइड माय बॉडी। ठीक, एंजाइम इज फॉर्म्ड इनसाइड माय बॉडी, then this is called as holozoic, and when the enzyme is found outside the body और बाहर में इसको ब्रेक डाउन करके हम लेते हैं, then this is called as saprozoic nutrition. कुछ अभी हम प्रोसेस बता रहे बेटा, हेटेरोट्रोफ का प्रोसेस, जैसे प्लांट का प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस। अब थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में क्या है? there are another group of heterotrophs which are called as parasites. Parasites are those organisms, they neither make their own food, ना तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, ना ये अपना एंजाइम बनाते हैं जिससे कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन कर सके। आप बनाइए, आप पचाइए, you digest it, I will take ready-made digested food from you. ठीक, so those organisms which do not make their own food, they are dependent on some other organism directly or indirectly on the plants for their food, and they do not take in complex food. Rather, that food, when the food has been broken down with the help of enzyme, is broken down food, ready-made broken down food को लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं parasites, right? So I will once again, quickly ये जो मैंने आपको समझाया है, इसको how do living things they get their food, so I will just very quickly try to just tabulate it. So let us tabulate these types of nutrition. बाद में आप भी इसको जरूर से टैबुलेट कर लें और टैबुलेट करके अपने एनसीईआरटी में मेरे जो 11-12 के बच्चे हैं उनको तो मैंने ट्रेनिंग दी हुई है, वो इंपॉर्टेंट चीजों को छोटे छोटे पेपर में लिखकर अपने एनसीईआरटी में स्टेपल कर लेते हैं। सो आई विल आल्सो आस्क यू टू डू दैट। दैट मींस nutrition can be basically of two types. One is autotrophic nutrition. These are those type of nutrition where the organism makes its own food with the help of simple raw material, inorganic raw material like carbon, hydrogen, oxygen. उससे हम अपना food खुद बनाते हैं. These are called as autotroph. Those which do not make their own food but directly or indirectly they depend on these plants for the food, they are called as heterotrophs. Now this
Trophs, to them we call as heterotrophs. Now what is the process of autotrophic nutrition? वैसे तो इसकी बेटा ज्यादा होते हैं प्रोसेस, ये दो तरह का होता है, कीमोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस, राइट। लेकिन कीमोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस अभी हम आपको बता नहीं रहे, अभी हम आपको केवल एक ही उसका प्रोसेस बता रहे, दैट इज फोटोसिंथेसिस। अच्छा ठीक है, अभी बता ही देते हैं, जब बता रहे हैं थोड़ा तो आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। These are of two types, one is called as chemo autotrophs, right? They are chemoautotrophs, and the other is called as photoautotrophs. Now what is the difference between the two? ये आप सुन ही लो, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे NTSC वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, so this much extra you must know, right? So what happens here? देखिए, ये वो ऑर्गेनिज्म है बेटा, ये इनका सेल है, और ये सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आई विल टेल यू, चलो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से ये बना रहे हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 प्लस कुछ रॉ मटेरियल, मतलब साइड मटेरियल और बनता है जैसे ऑक्सीजन एंड वाटर। इससे मेरे को मतलब नहीं है, मुझे मेन क्या बनाना था, ग्लूकोज बनाना था, ठीक है भाई। हमने सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से ग्लूकोज बनाया। यहां ग्लूकोज बनाने के लिए ऑर्गेनिज्म एनर्जी कहां से लेते हैं, तो बता दें, जो दुनिया में पहले ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना बना रहे थे वो एनर्जी सनलाइट से नहीं लेते थे, तो कहां से लेते थे? फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल। आपको पता है तब तक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं आया था, क्योंकि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ही वो मॉलिक्यूल है जो सोलर एनर्जी को पकड़ सकता है। तो जो पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में आए थे उनके पास क्लोरोफिल नहीं था, तो क्लोरोफिल नहीं था तो वो सनलाइट से एनर्जी नहीं ले सकते थे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते थे, तो वो एनर्जी कहां से लेते थे? ग्लूकोज को बनाने के लिए। तो आपको पता है सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, सेल में एक मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है AB, जो टूट कर बना रहा है A प्लस B, और इस प्रोसेस में इसमें एनर्जी निकल रहा है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, सम रिएक्शंस में एनर्जी निकलते हैं, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी कंज्यूम होता है, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमारे सेल में दोनों तरह के रिएक्शन होते हैं। मेटाबॉलिज्म मैंने पिछले क्लास में बताया था, मेटाबॉलिज्म के तहत हमारे सेल में कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होता है। ये जो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुआ ना बेटा, ये एनर्जी को लेते थे फॉर मेकिंग फूड, so they are called as chemoautotroph because auto means they are making their own food, auto means food, self, troph means food, so they are making their own food, but the source of energy here is the chemical reaction taking place in the cell, so that is called as chemoautotroph. Chemoautotroph जो फूड बना पाते थे ज्यादा नहीं बना पाते थे, क्यों? क्योंकि भैया केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में हो रहा है उससे कितना एनर्जी निकलेगा, और अगर एनर्जी कम निकलेगा तो ऑब्वियसली हम फूड भी क्या है, कम बनाएंगे, और अगर हम फूड कम बनाएंगे तो हमेशा मेरे बॉडी में क्या होगा, एनर्जी का लेवल कम होगा। ठीक, हमने इट इज समथिंग लाइक दिस कि मैं अगर आपसे कहूं कि बेटा आप थोड़ा सा पानी गर्म कर दो, और आपके पास एनर्जी के सोर्स में कैंडल है, तो आप एक कैंडल में कितना पानी गर्म कर सकते हैं? 1 चम्मच पानी गर्म कर सकते हैं ना। अब उस 1 चम्मच पानी से आप नहाएंगे कि खाना बनाएंगे कि पिएंगे, क्या करेंगे? 1 चम्मच पानी से। ठीक, तो आपको क्या लगा आइडिया? क्या करते हैं? गैस ले आते हैं, क्योंकि गैस के पास ज्यादा एनर्जी है, तो हम ज्यादा पानी गर्म कर पाएंगे, तो हम कुछ पानी को नहाने में यूज करेंगे, कुछ कपड़े धोने में यूज करेंगे, कुछ पकाने में यूज करेंगे। वैसे ही शुरू में कीमोसिंथेसिस इज समथिंग लाइक अ कैंडल। भैया सेल में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उससे जो एनर्जी निकल रहा है उससे हम फूड बना रहे हैं, इतना सा तो फूड बनेगा। अब उस फूड को हम जिंदा रहने के लिए यूज करें कि इवॉल्व होने के लिए यूज करें? इवॉल्व मतलब हमारा बॉडी तो कॉम्प्लेक्स बॉडी है ना, तो जितना बॉडी कॉम्प्लेक्स होगा उतना एनर्जी ज्यादा लगेगा। अच्छा, मैं यहाँ किसके बारे में बात कर रही हूँ? बैक्टीरिया के बारे में बात कर रही हूँ, जो सबसे ज्यादा प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया का एक तो सेल भी कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक, एंड बेचारा यूनिसेलर होता है। तो इतने एनर्जी से बस हम एक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलर सेल ही मेंटेन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी सैलरी 5,000 रुपए महीने है तो हम भैया रूम में घर में एक पंखा ही अफोर्ड कर सकते हैं, एसी अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे केमिकल रिएक्शन से निकलने वाले एनर्जी से जब हम फूड बना रहे थे तो हम क्या मैक्सिमम मेंटेन कर पा रहे थे? जस्ट अ प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया। ठीक, फिर हमने सोचा भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, तब जाकर ऑर्गेनिजम्स बनाते तो ग्लूकोज ही है, पर उस केस में उन्होंने एनर्जी का सोर्स क्या लिया? जब उन्होंने एनर्जी का सोर्स सनलाइट लिया, फोटो मीन सनलाइट,
When the source of energy, again just for doing this reaction, became sunlight, then the organism became photoautotroph, and this became possible only when organisms develop chlorophyll. क्योंकि मैंने पिछले क्लास में ही बोला था, क्लोरोफिल को अंडर एस्टिमेट मत करिए, ये दुनिया का इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल है, लिविंग मतलब लिविंग मॉलिक्यूल है, नेचुरल मॉलिक्यूल है, जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उससे यूज करके उससे फूड बना सकता है, यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड में एनर्जी को स्टोर कर सकता है। सो पहले जो टाइप ऑफ ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन आया, दैट वाज कीमोऑटोट्रोफ। दिस इज फाउंड ओनली इन बैक्टीरिया। उसके बाद जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना बनाते हैं, दे आर ऑल फोटोऑटोट्रोफ। दे आर एबल टू हार्नेस सोलर एनर्जी, एंड दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक, so this is about autotrophic nutrition. Now let me be very clear with it. यहाँ पर मैं इसके points लिख दूँ. Autotrophs are those which make their own food with the help of simple inorganic materials. Right? यहाँ पर देखिए हम खाना simple inorganic material से बना रहे हैं. In this food they trap the energy, but if the source of energy is the chemical reaction of the cell, we call it as chemoautotroph. If it is sunlight, we call it as photoautotroph. Very good. चलिए मैंने आपको इतना बता दिया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हेटेरोट्रोफ्स। अगेन यहाँ पर हेटेरोट्रोफ की स्पेलिंग मैंने गलत लिख रखी है, राइट? हु आर हेटेरोट्रोफ्स? नाउ हेटेरोट्रोफ्स थोड़ा नीटली लिख लूं बिकॉज आई विल नीड प्लेस हियर। ठीक है, आई विल नीड प्लेस हियर। हेटेरोट्रोफ्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर नॉट एबल, TROP, heterotroph, which are those organisms which cannot make their own food, rather they depend directly or indirectly. Directly or indirectly क्यों कहते हैं? पूछना चाहिए सवाल। इसलिए कहते हैं, suppose this is a plant, right? This is a plant. The plant is eaten by rabbit. ठीक? So rabbit is getting food from the plant, and say the rabbit is eaten by fox. So fox के लिए फूड कौन है? रैबिट है, लेकिन इनडायरेक्टली ये भी फूड किससे ले रहा है? प्लांट से, क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ प्लांट ही वो ऑर्गेनिज्म है जो सोलर एनर्जी को लिविंग वर्ल्ड में एंटर करता है। सो दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स फॉर द फूड, such organisms are called as heterotrophs. Normally this is they take the food from plant. The food is a complex organic compound. This complex organic compound needs to be broken down with the help of enzyme. So accordingly, these heterotrophs are of three types. Those heterotrophs, right, which can, make enzyme within the body. They take food inside the body and digest it within the body. They are called as holozoic. होलोजोइक न्यूट्रिशन में जैसे ये है, ऑटोट्रोफ में फोटोऑटोट्रोफ और कीमो, वैसे यहाँ होलोजोइक के एग्जांपल में है मैन, इवन वी आर होलोजोइक। हम फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं, बॉडी के अंदर एंजाइम बनाते हैं, अंदर डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद जो ग्लूकोज बनता है उसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम से बॉडी के हर एक सेल में डाल देते हैं। These are called as holozoic nutrition. Those which make enzyme outside the body, they are called as saprozoic, जिसको decomposers भी बोलते हैं, जिसके एग्जाम्पल में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फंजाई, राइट? तो ये भी कॉम्प्लेक्स फूड को ही ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन एंजाइम की मदद से, बट एंजाइम को बॉडी के बाहर बनाते हैं। एंड दोज व्हिच नाइदर मेक नॉर डाइजेस्ट, दे टेक रेडीमेड डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम यू, दीज आर कॉल्ड एज पैरासाइट। ठीक, पैरासाइट में तो देयर आर लॉट ऑफ पैरासाइट्स, से लीच इज अ पैरासाइट, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइट। ठीक है, so I will give you any one example. Say I'm going to give you an example of leech, and there are many other parasites. Now listen, even head lice, जो सिर में जुएं होती है, these are also parasites, etc. Now listen, यहाँ पर I will again give you an example. Holozoic and saprozoic को समझाने के लिए give you example. एक ब्रेड का टुकड़ा है, right? Bread is what? Plant food, starch. आटे से बनता है, आटा प्लांट से बनता है। तो जब ब्रेड खाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फूड है, स्टार्च, इसको आपको डाइजेस्ट करना है। आपने दो ब्रेड लिया, एक ब्रेड आपने बाहर फेंक दिया मिट्टी में, और एक बॉडी के अंदर डाल दिया। जब बॉडी के अंदर डाला तो भी आपका फूड क्या हुआ? ब्रेड ब्रेक डाउन हुआ। ठीक, अंदर में एंजाइम बना होलोजोइक, जब आपने बाहर भेज दिया उसमें फंजाई लगते हैं।
आप लोग उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डिकम्पोजिशन। फंजाई एंजाइम बना के ब्रेड को पूरा क्रम्बल में बदल देते हैं, उसके बाद वो उसको ऑब्जॉर्ब करते हैं। तो आपने ब्रेड को बॉडी के बाहर सड़ते देखा है, दैट इज सैप्रोजोइक। एंड बॉडी के अंदर, आपके अंदर में जो होता है दैट इज डाइजेशन, बिकॉज यू मेक योर एंजाइम्स इनसाइड। बट फंजाई जो उस ब्रेड पे लग जाता है वो बाहर में एंजाइम बनाता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, तो आपको ब्रेक डाउन होते हुए दिखता है, जिसको आप कहते हैं डिकम्पोजिशन। उसके बाद वो उसको अब्सॉर्ब करता है। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। आपके सिलेबस में you have only two types of nutrition to study. One you have to study is this प्लांट न्यूट्रिशन में फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन आपको पढ़ना है, एंड दूसरा आपको ह्यूमन में न्यूट्रिशन पढ़ना है। वी आर एन एग्जांपल ऑफ होलोजोइक वेयर वी टेक होल फूड इनसाइड द बॉडी एंड वी डाइजेस्ट इट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, राइट? सो लेट अस नाउ स्टार्ट the autotrophic mode of nutrition. But before we start autotrophic mode of nutrition, I want to talk a little bit on enzyme. This will be a very important topic जो आपको आएगा स्कूल के एग्जाम में। What are enzyme? आपके एनसीईआरटी में कहता है enzymes are biocatalyst. Now what are biocatalyst? Now listen. ये आपका सेल है, राइट? इस सेल के अंदर में कुछ भी हो रहा है, सिर्फ प्लांट खाना ही बना रहा है, सिर्फ प्लांट खाना ही बना रहा है। तो खाना कैसे बना रहा है? वो कार्बन डाइऑक्साइड, अभी हम बैलेंस इक्वेशन नहीं बना रहे, हम जस्ट शोइंग यू। एंड वाटर को लेकर क्या बनाता है? सी ग्लूकोज बनाता है, ठीक है? तो अगर आपको पता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि कोई भी रिएक्शन नॉर्मली जब होता है, आपने केमिस्ट्री में नॉर्मली इस टाइप के रिएक्शंस पढ़े हैं, आपने पढ़ा है दे रिक्वायर कैटलिस्ट। नॉर्मली रिएक्शंस दे रिक्वायर कैटलिस्ट। नाउ व्हाट आर कैटलिस्ट? यू मस्ट हैव लर्नड इन केमिस्ट्री। दीज आर दोज सब्सटेंसेस which alter the rate of reaction, जो रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करते हैं बट खुद कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, ठीक है? सो कैटलिस्ट आर दे ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शंस, ऑल्टर रिएक्शन रेट विदाउट देमसेल्व्स बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। तो भैया जब हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर इस टाइप के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, दिस इज एनाबॉलिक रिएक्शन, जब छोटी चीजें बड़ी बनाती हैं, जब बड़ा चीज टूटता है दैट्स कैटाबॉलिक। तो खैर हमारी बॉडी में चाहे एनाबॉलिक रिएक्शन हो चाहे कैटाबॉलिक रिएक्शन हो, हमारे बॉडी में तो बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। तो ऑब्वियसली हमें भी क्या चीज की जरूरत है? कैटलिस्ट की जरूरत है। वो कैटलिस्ट जो बायोलॉजिकल बॉडी में काम करते हैं, यानी कि लिविंग बॉडी में काम करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोकैटलिस्ट। बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दोज कैटलिस्ट व्हिच वर्क इन लिविंग सेल्स, so I am calling it as biocatalyst. And biocatalyst के लिए हमने एक अलग से टेक्निकल टर्म दे दिया है, we call it as enzyme. So enzymes are catalyst. Those catalysts which is found within living cells or living bodies, those are called as enzymes. And उसके लिए एक और टर्म यूज होता है, that is biocatalyst. Now इससे पहले अब तो मैंने आपको बता दिया what is nutrition. Let me quickly revise the process by which you take in food and other materials required for growth and development, that is called as nutrition. And and what is food? Food includes everything, the energy source plus other materials को मिलाकर हम food कहते हैं। ये food कैसे लें? कुछ ऑर्गेन्स हम सिंपल इनऑर्गेनिक से बना लेते हैं, these are called as autotroph। अगर बनाने के लिए सनलाइट यूज किया तो फोटो ऑटोट्रोफ, केमिकल रिएक्शन यूज किया तो कीमो ऑटोट्रोफ। जो अपना खाना खुद भी बनाते हैं पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, हेट्रोट्रोफ। वो केवल कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में ब्रेक डाउन करते हैं एंजाइम यानी कि बायोकैटलिस्ट की मदद से। अगर एंजाइम हम खुद बना रहे हैं अंदर बॉडी के अंदर होलोजोइक, बाहर बना रहे हैं सैप्रोजोइक, और भैया हम रेडीमेड डाइजेस्टिव फूड ले रहे हैं, देन वी आर कॉल्ड एज पैरासाइट्स। फिर हमने बायोकैटलिस्ट भी आपको बता दिया, राइट? नाउ अब हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में आगे बढ़ेंगे। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद प्लांट न्यूट्रिशन एंड देन वी विल गो फॉर फोटो ऑटोट्रोफ, फिर हम आपको ह्यूमन में डाइजेशन पढ़ाएंगे। उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बोला है, हम साथ साथ एनसीईआरटी देखते चले जाएंगे एंड यू विल सी हियर बेटा, आई हैव इवन रिटन द क्वेश्चंस हियर। मैं आज जो आपको पढ़ा रही हूं, पढ़ाने के बाद इमीडिएटली बाद हम इसको YouTube में अपलोड कर देंगे। दोबारा वीडियो को देखना थोड़ा रोक रोक के, यहाँ क्वेश्चंस लिखा है, अगर ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे आपको बोर्ड में 100% फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। नाउ लिसन, तो फर्स्ट पैराग्राफ से जो क्वेश्चन बना, व्हाट इज फूड, लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ दिस नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे the source of energy material and materials is the food we eat। ये इसका फर्स्ट आंसर है। नाउ कम हियर, जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है आप उसको देखिए। यहाँ पर पहले रीडिंग मान लेते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। The general requirement for energy, यहाँ लिख रहा है, is common in all organisms
हर ऑर्गेनिज्म को दुनिया में एनर्जी चाहिए, बट इस एनर्जी को फुलफिल करने के अलग अलग तरीके होते हैं. सम ऑर्गेनिजम्स दे यूज सिंपल फूड मटेरियल that is made from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. These organisms are called as autotroph. एनर्जी तो सबको चाहिए लेकिन लेने का तरीका अलग है. इसका एग्जाम्पल याद कर लेना. इसका एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. ठीक, अब आ जाओ सेकेंड फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन क्या है. अदर ऑर्गेनिजम्स दे यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस and they have to be broken down into simpler ones before they can be used for growth. ठीक, these organisms which यहाँ पर देखो लिखा है, these organisms which depend directly or indirectly on plants, these are called as heterotrophs, which include animal and fungi. तो यहाँ पर क्या है, how do living things get their food? Some living things they get it, they make it on their own. Some they take it from directly or indirectly from plants. Then explain the term autotroph and heterotroph with example. ये देखो autotroph का definition, ये है आपका heterotroph का example definition. Autotroph का दो example है, heterotroph का दो example है. उसके बाद what are biocatalysts? इसका मैं color बदल देती हूँ. So look at this. जो to achieve this, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, वी रिक्वायर सर्टेन कंपाउंड्स. दीज आर कॉल्ड एज बायोकैटलिस्ट और एंजाइम्स. यहाँ थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट आर बायोकैटलिस्ट एंड गिव देयर अनदर नेम. ठीक, so those organisms which break down complex food into simple one, they require certain special organic compound called as enzymes, and these enzymes are also called as biocatalysts. एक और क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रोफ एंड हेटेरोट्रोफ. इसमें आप क्या लिखेंगे, ऑटोट्रोफ्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स. ठीक है, इनके प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. इनके प्रोसेस में वी कैन बी होलोजोइक, सैप्रोजोइक और पैरासिटिक. यहाँ पर ठीक है, दे आर यूटिलाइजिंग डायरेक्टली सनलाइट, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. ठीक, एंड इसके अलावा आप एक आध एग्जांपल्स को दे देना. ठीक है, सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस that can be asked from this general topic. अभी तक हमने जनरल डिस्कशन किया what is nutrition. अब हम आ जाते हैं, so finally nutrition का definition भी आ गया. It includes all that process by which an organism takes in food and utilizes it for growth and development. Right? एक और क्वेश्चन जो आपके NCERT में आएगा आगे जाकर, मैं भी दिखा दूंगी. How is this food stored? ये फूड को वो लोग स्टोर कैसे करते हैं, राइट? प्लांट्स जो ग्लूकोज बनाते हैं, मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, दिस फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. जबकि एनिमल्स जब आपका फूड में जब ग्लूकोज बना लेते हैं, सो एनिमल्स दे स्टोर दिस फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, हाउ इज दिस फूड स्टोर्ड. हो गया. अब जब हम फूड स्टोरेज का देख लिए, अब हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स योर autotrophic mode of nutrition. So autotrophic nutrition. अब autotrophic nutrition तो आप कितनी बार डिफाइन कर दिए. This is that type of nutrition where food is made from simple inorganic compound, molecules. The food is made with the help of sunlight. ठीक है, and the process is called as photosynthesis. अब सुनिए, photosynthesis का इक्वेशन क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं. and इस इक्वेशन पर अभी थोड़ी सी लंबी डिस्कशन चलेगी. क्लास 11 में बच्चे आते हैं और मैं उनसे फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन पे सवाल पूछती हूँ, जवाब नहीं दे पाते. व्हाई? 10 से पढ़कर थोड़ा ना आते हैं, रट के आते हैं. चलिए देखते हैं फोटोसिंथेसिस का बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, क्योंकि ये आपके स्कूल के इंटरनल एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. पहला व्हाट इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हम पढ़ लिए, व्हाट इज द प्रोसेस, आपको जो प्रोसेस पढ़ना है दैट इज फोटोसिंथेसिस. तो थर्ड आएगा व्हाट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, देखिए हम यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशन लिख रहे हैं. नाउ जस्ट लुक एट दिस. 6CO2 याद कर लेना बेटा, प्लस 12H2O, राइट. उसके बाद यहाँ एक एरो बनाते हैं, एरो में क्या लिखते हैं भी देखेंगे, विल फॉर्म ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O. इस इक्वेशन में क्या लिखना है यहां भी देख लेते हैं. विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है, इसको हम लोग अभी देखेंगे. नाउ कम हियर.
हमारा अल्टीमेट एम फोटोसिंथेसिस में क्या है? टू मेक ग्लूकोज। ठीक है, हम ग्लूकोज के कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में एनर्जी ट्रैप करेंगे। सो आई वांट टू मेक ग्लूकोज। दिस इज वेरी क्लियर टू अस। नाउ दैट दिस इज क्लियर, ठीक है, हम लोग अब आपसे कुछ चीजें हम पूछेंगे एंड आई वांट टू सी हाउ यू आंसर इट। आप इस बात को कैसे आंसर करते हैं? सुनिए, ग्लूकोज क्या क्या चीज का बना है बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट? ग्लूकोज में कार्बन कितना है? 6, देखो C6। हाइड्रोजन कितना है? 12। ऑक्सीजन कितना है? 6। यानी कि 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्लियर? वेरी गुड। नाउ लेट अस कम टू हियर। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है बेटा? कार्बन 1 होता है, देखो कार्बन, लेकिन आपने 6 कार्बन डाइऑक्साइड लिया है तो 6 into 1 क्या होगा? 6, तो यहां 6 कार्बन है। अच्छा, ऑक्सीजन यहां कितना है? 6 into 2 12 है। वाटर पे आ जाओ, वाटर में हाइड्रोजन कितना है? 12 2 24 एंड ऑक्सीजन कितना है? 12, राइट? ये हो गया। अच्छा, अब जो बचे हुए प्रोडक्ट है उनको भी देख लेते हैं। इस ऑक्सीजन में ऑक्सीजन कितना है बेटा? 6 into 2 12। वाटर क्या क्या चीज का बना है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है? 6 2 12 एंड ऑक्सीजन कितना है? 6 है। ठीक, आपको ग्लूकोज बनाना है। उस ग्लूकोज के लिए पहला रॉ मटेरियल आपने क्या लिया है? कार्बन डाइऑक्साइड लिया है। चलिए, और अल्टीमेटली देखिए मेरा एम ये बनाना, वो दोनों बाई प्रोडक्ट है, बन जाते हैं, बट वो एम नहीं है, एम मेरा ग्लूकोज बनाना है। ठीक है, वेरी गुड। ग्लूकोज के लिए पूरा का पूरा कार्बन कहां से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। यू कैन सी कार्बन डाइऑक्साइड है 6 कार्बन, ग्लूकोज है 6 कार्बन, दिस एंटायरली कम्स फ्रॉम हियर। अब ग्लूकोज में आपका ऑक्सीजन कहां से आता है? मैंने अक्सर जब बच्चों से पूछा है ऑक्सीजन कहां से आता है, मोस्ट ऑफ देम दे से कि मैम ऑक्सीजन वाटर से आता है। पर बता दे बेटा, ग्लूकोज में ऑक्सीजन वाटर से नहीं आता, कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। कार्बन डाइऑक्साइड के पास कितना ऑक्सीजन है? 12। ग्लूकोज में कितना चाहिए? 6 यहां यूज हो गया एंड यहां पर 6 आपका बच जाता है। सी 6 इज लेफ्ट, 6 आई यूज्ड इट हियर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स ऑक्सीजन, वाटर केवल क्या देता है? वाटर हमें हाइड्रोजन देता है। ठीक है, यहां मेरे को हाइड्रोजन कितना चाहिए बेटा? 12। ठीक है, जबकि यहां हाइड्रोजन कितना है? 24। तो यहां पर हमने यूज कर लिया 12, यहां ले लिया बेटा, ग्लूकोज बन गया। एंड यहां पर आपका क्या हो जाता है? आपका हाइड्रोजन बच जाता है कितना? आपका 12 हाइड्रोजन बच जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं ये ऑक्सीजन जो बाई प्रोडक्ट में निकला। ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन बेटा इट कम्स फ्रॉम वाटर, क्योंकि यहां पर देखो ऑक्सीजन कितना है? 12। अब मैं कलर बदल देती हूं, यहां ऑक्सीजन कितना है? 12, यहां ऑक्सीजन कितना है? 12। द एंटायर ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। ठीक है, दैट मींस वाटर का ऑक्सीजन ग्लूकोज नहीं बनाता, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन ग्लूकोज में यूज होता है। बचा क्या? वाटर। एक्चुअली वाटर क्या है? अब ये जो दोनों बाई प्रोडक्ट में बच गए, ठीक है, ये H2O बनाएंगे, इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन, तो देखिए यहां पर 12 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 6, ये दोनों मिलकर वो आपका वाटर बनाता है। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको हम लोग क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि जब तक आपको इक्वेशन ऐसे नहीं पढ़ाया जाए, आपका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो कभी क्लियर नहीं हो सकता। बच्चे 11 में आ जाते हैं, 12 में आ जाते हैं, लेकिन बेसिक्स गड़बड़ होती है ना, तो आंसर याद नहीं रहता, क्योंकि उनको याद करना पड़ता है। जबकि आप जब चीजों को समझते हैं तो आपको याद नहीं करना पड़ता, वो आपके साथ जाता है। कि हम लोग हमेशा कहते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स यू दैट शुड बी योर सेकंड स्किन। सेकंड स्किन ये एक प्रोवर्ब है, ये एक कहावत है। सेकंड स्किन मतलब आप क्या, जब सुबह उठते हैं तो कहीं जाने के लिए स्किन पहनते हैं कि पहले स्किन पहन लेते हैं, अब बाल बनाते हैं, चश्मा पहनते हैं, ठीक, लेकिन नाखून काटते हैं, लेकिन कभी चमड़ा नहीं पहनते। व्हाई? बिकॉज दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यू। वैसे हम लोग कहते हैं कुछ चीजें, कॉन्सेप्ट आपकी क्या, कॉन्सेप्ट एक सेकंड स्किन होती है, उसको कभी रटना नहीं पड़ता। स्किन के जैसे वो आपके साथ मरने तक हमेशा रहेगा। आप अपने पोते एंड परपोते, ग्रैंड चिल्ड्रन को भी आप फोटोसिंथेसिस पढ़ा देंगे, यू विल नॉट फॉरगेट। दिस इज बिकॉज यू हैव टू लर्न इट थ्रू कॉन्सेप्ट्स। सो प्लीज लुक एट इट वंस अगेन। आप बोलोगे मैम इतना क्यों पढ़ा रहे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दैट मींस फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें मुझे ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना है। कार्बन हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से। केवल पानी पर क्या चीज के लिए डिपेंडेंट है बेटा? मेक इट वेरी क्लियर, पानी पर हम केवल हाइड्रोजन के लिए डिपेंडेंट है। ऑक्सीजन तो ऐसे मुफ्त में ही
निकल जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट और बाद में हमें फायदा कर गया क्योंकि इस ऑक्सीजन की वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन आया। ठीक है, बट ऑक्सीजन बनाना हमारा एम नहीं था। वाटर का एम क्या था? हाइड्रोजन प्रोवाइड करना टू मेक ग्लूकोज। ऑक्सीजन इज नेवर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो हमारा एम नहीं था, वो बाई चांस बन गया। एम हमारा था ग्लूकोज बनाना, सो द प्रोडक्ट इज ग्लूकोज। वाटर एंड ऑक्सीजन आर बाई प्रोडक्ट्स। चलिए ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो इससे मैं एक चीज आपको और बताऊंगी, अभी बताते हैं उससे पहले अब सवाल उठता है क्लोरोफिल एंड सनलाइट का क्या रोल है। यहां आपने यहां लिखा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है आपको पता है? ग्लूकोज में कार्बन एंड ऑक्सीजन यही प्रोवाइड करेगा। वाटर का भी क्या रोल है आपको पता चल गया, वाटर हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद इनके बचे कुछ जो सामान रह गए वो ऑक्सीजन एंड वाटर बनाएंगे। ठीक, अब आ जाते हैं क्लोरोफिल का क्या रोल है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जोड़कर जो आपको ग्लूकोज बनाना है, इसके लिए एनर्जी कौन देगा? सनलाइट। ठीक, सो सनलाइट इज बेसिकली द सोर्स ऑफ एनर्जी विच विल हेल्प यूनाइट कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को यूनाइट करके ग्लूकोज बनाने के लिए एनर्जी देगा सनलाइट। तो अगर सनलाइट एनर्जी देगा तो क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल उस सनलाइट को हार्नेस करेगा। Chlorophyll will capture that solar energy and chlorophyll will, which color should I use? Chlorophyll will capture the solar energy and convert it into this energy, convert it into chemical energy. That means उस energy की मदद से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो हमें यहाँ से मिले उनको जोड़कर ग्लूकोज बनाने में मदद करेगा। Is that clear? अब यहाँ पर इस इक्वेशन से रिलेटेड आप लोगों में एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं बता दूंगा। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो जो एक बार थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें मैं इसको मिटाती हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ चीजें बतानी है। वो क्या है? देखिए, मैं एक अपना टीचिंग एक्सपीरियंस बताऊं। ये मेरा फर्स्ट ईयर था व्हेन आई जॉइंड एज अ टीचर। उस साल मुझे थोड़ा सा 10th का भी क्लास मिला था। आपके 10th के क्लास में उस अभी का बुक में तो मुझे पता नहीं, उस समय के बुक में केमिस्ट्री में ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन था। राइट, केमिस्ट्री में ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन था। और ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन केमिस्ट्री में आपका कैसे लिखा हुआ था मैं आपको दिखा दूं, और बच्चे ने मुझे क्या सवाल पूछा मैं वो बता दूं। अच्छा, मैं नीचे बना देती हूँ क्योंकि मुझे फिर मैं नेक्स्ट पेज में फिर दिखा दूंगी। केमिस्ट्री में सेम इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ था। आई विल जस्ट डू इट विद ग्रीन कलर। ऐसे लिखा था 6CO2 प्लस 6H2O will give C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O नहीं लिखा था, बस इतना ही लिखा था। ठीक है, हमको पता नहीं था केमिस्ट्री में ऐसा लिखा है। और क्यों लिखा है? क्योंकि आप लोगों को पता है आप केमिस्ट्री में बैलेंसिंग पढ़ते हैं। तो बैलेंसिंग में आप क्या करते हैं? अगर यहाँ 12 वाटर है, यहाँ 6 वाटर है, तो आप इसको कैंसिल करके यहाँ 6 वाटर लिख देते हैं। ये इक्वेशन लिखा हुआ था केमिस्ट्री के बुक में। और 10th में तो साइंस होता है। ठीक, तो अब साइंस में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों है, तो बच्चे ने ये इक्वेशन लिखा। मैंने इसको 0 दे दिया क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन में मेरे हिसाब से यहाँ 6 नहीं होना चाहिए था, यहाँ कितना होना चाहिए था? 12, और यहाँ पर कितना होना चाहिए था? यहाँ 6 वाटर और होना चाहिए था, जो रेड से मैं बना रही हूँ। बच्चे ने तो केमिस्ट्री के हिसाब से लिखा, बैलेंसिंग कर दिया, यहाँ का 12 और यहाँ का 6 काट दिया और ये लिखा। मैंने इसको 0 दे दिया। तो बच्चा आकर मेरे को बोला, मैम आपने मुझे 0 क्यों दिया? तो मैंने कहा नहीं मैम ने तो आपको ये पढ़ाया था। तो बोले नहीं हमारे बुक में लिखा है। मैंने बोला दिखाओ। बुक में उसने ये दिखाया, पर मैंने देखा ये उनका केमिस्ट्री का इक्वेशन था। तो केमिस्ट्री में तो आप बैलेंसिंग पढ़ाते हैं, आप यहाँ वहां का काट देते हैं, बट ये बायोलॉजी में लागू नहीं है। क्यों? मेरी बात को ध्यान से सुनना। व्हाई इज दिस इक्वेशन रॉन्ग? If you write it in biology, if I ask you from photosynthesis, why it is wrong? Because यहाँ पर ये जो वाटर है, यहाँ ये 12 वाटर एक्सेस नहीं था कि 6 खर्च हुआ और बचा हुआ 6 हम निकाले। ये एक्सेस नहीं था कि 6 खर्च हुआ हम 6 निकाले। यहाँ पर क्या ये पूरा का पूरा वाटर यूज हुआ था। आप पूछोगे मैम पूरा वाटर कहाँ यूज हुआ? जस्ट नोटिस दिस, ये पूरे वाटर में ऑक्सीजन कितना? 12। ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन हमारा यूज हुआ है। ठीक, ये तो इसका और इसका बाई प्रोडक्ट, इसका और इसका बाई प्रोडक्ट मिलकर बचा हुआ वाटर बना है। आई गिव यू एन एग्जांपल। एग्जांपल ये कि सपोज मेरे घर में एक बच्चे का बर्थडे पार्टी है। एक बच्चा है मेरे घर में, उसका बर्थडे पार्टी है। तो हमने क्या सोचा कि बर्थडे के बाद रिटर्न गिफ्ट में हम बच्चों को एक एक पेंसिल देंगे। तो उसके 10 दोस्त आने वाले थे, मैं 10 पेंसिल खरीद के ले आई।
पार्टी खत्म हुई, हमने हर एक उसके दोस्त को रिटर्न गिफ्ट में एक पेंसिल दे दी, वो चले गए। जब बच्चे चले गए तो हम उनकी गिफ्ट खोल के देखने लगे, भाई बर्थडे में सब गिफ्ट भी देते हैं ना, हम लोग वो गिफ्ट खोल के देखने लगे। तो देखे तो एक बच्चे ने जो हमने रिटर्न गिफ्ट में पेंसिल दी थी, वही पेंसिल 2 पेंसिल हमें गिफ्ट के फॉर्म में दी थी। तो आप क्या बोलेंगे कि मैंने सिर्फ 8 पेंसिल खरीद के लाई क्योंकि मैंने 10 बांटा, 2 मुझे मिल गया, तो क्या मैं 8 पेंसिल खरीद के लाई? नहीं, मैं 10 ही पेंसिल खरीद के लाई, मुझे 10 के पैसे देने पड़े, ये तो बर्थडे के बाद मुझे 2 मिला है। वैसे ही ऐसा नहीं है कि हमने 12 वाटर दिया था और 6 खर्च हुआ, 6 बचा। दिस वाटर हैज बीन मेड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज। इफ यू मेक दिस एज 6 water, just see what will happen. If you make this like this, just try to find out what will happen. यहाँ ऑक्सीजन फिर कितना होगा? The oxygen will be 6 और आप यहाँ ऑक्सीजन कितना निकाल रहे हो? 12 निकाल रहे हो। आपका पूरा का पूरा रिएक्शन बेकार हो जाएगा, पूरा का पूरा रिएक्शन खराब हो जाएगा। That means imbalance in photosynthesis, you cannot do this balancing. You have to write the entire equation. So that is why जो मैंने अगला टॉपिक दिया है वही लिखा है clarification of equation. So मैं यहाँ पर एक बार फिर से बोल्डली कह दूं, the equation will be, you know, this one. That means it will be 6CO2 plus 12H2O. मैं फिर से इसको बोल दूं, will form glucose C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Please do not balance like you balance in chemistry. इसको balance करके this is a wrong equation जो मैं नीचे लिख रही हूँ, you will get a 0. अगर क्लास 10 में 0 मिला है तो आप भी 10 में ही है, so you must know this is the wrong equation. At least in biology you cannot write this equation, and I hope you understand now why you cannot write this equation. अब आ जाते हैं last thing, what is the process of photosynthesis. photosynthesis का process क्या है? photosynthesis एम हमें पता लग गया, पहले मैंने आपको एम पढ़ा दिया। एम क्या है? ग्लूकोज बनाना। ग्लूकोज के लिए क्या चाहिए? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हमने सब कुछ जुगाड़ कर लिया है। कार्बन कहां से ले लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑक्सीजन किससे ले लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोजन का कमी हो गया, किससे ले लेंगे? वाटर से। ठीक, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, पानी के हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिएगा वो सनलाइट से ले लेंगे, और सनलाइट की एनर्जी पकड़ कर कौन लाएगा? तो क्लोरोफिल लाएगा। जब हमारा एम पूरा क्लियर हो गया तो अब हम लोग इसके स्टेप्स में आ जाते हैं। मैं आपको बता दूं फोटोसिंथेसिस का स्टेप्स बहुत इलैबोरेट एंड टफ होता है। क्लास 11 में जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ाते हैं तो लगभग इसके सारे स्टेप्स पढ़ाने में आपका आज जैसा मैंने क्लास लिया है वैसा 4 से 5 क्लास लग जाता है। ठीक, और कम से कम ये 10 से 15 पेज में लिखा हुआ है, बट आपके एनसीईआरटी में तो ये मात्र एक छोटे से पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इट्स ओनली इन अ स्मॉल पैराग्राफ। लेट अस सी आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है। अगर आपके एनसीईआरटी का हम लोग पेज 9 इसमें देखते हैं, अच्छा सॉरी, ये वाला तो मैंने डिस्कस नहीं किया था, चलिए छूट गया था, मैं अभी कर लूं कि ऑटो फोटोसिंथेसिस का यहाँ डेफिनेशन लिखा है। ठीक है, वे गुड, जितना पढ़ा है उसको पहले हम लोग देख लें। सो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोफ दे टेक सब्सटेंसेस like carbon dioxide and water and convert it into carbohydrate in presence of sunlight and chlorophyll. This is called as photosynthesis. So ये हो गया definition of photosynthesis. This is in page 95 का जो नीचे का पैराग्राफ है उसमें है। So एक क्वेश्चन देखो, जितना अंडरलाइन किया उतना ही लिखोगे। The process by which autotrophs या green plants, ठीक है, take in carbon dioxide and water and convert it into carbohydrate. take in के बाद substances को भी हटा सकते हो। Take in carbon dioxide and water and convert it into carbohydrate in presence of sunlight and chlorophyll is called as photosynthesis. Photosynthesis के बाद plants क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, पर उसको स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? It is a very 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 important question. But the plants they store the food in the form of starch. ये आपका अगला क्वेश्चन है। अगर plants स्टोर करते हैं in the form of starch, तो animal किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? This is your glycogen. ठीक, तो पेज 95 में न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी मैंने आपको न केवल पढ़ा दिया है बल्कि आई हैव आल्सो डन द एनसीईआरटी रीडिंग फॉर द सेम। मैंने आपको एनसीईआरटी से भी बता दिया है कि इससे क्या क्या आपका आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बैलेंस इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या है। दिस विल बी द क्वेश्चन, गिव अ बैलेंस इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक, और यहाँ पर क्या लिखा है? 6CO2 plus 12H2O, presence of chlorophyll and sunlight, it will form glucose, carbon dioxide and water.
ठीक, मैं आज आपको यहां तक पढ़ाऊंगी जहां तक आपका दिख रहा है। तो अगला चीज क्या है, ये क्वेश्चन भी मैंने बता दिया, 8th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन क्या आएगा, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और आपकी एनसीईआरटी में देखो ये 3 स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अगले पैराग्राफ से ये क्वेश्चन आएगा, द स्टेप्स मे नॉट अकर वन आफ्टर अनदर, एक्सप्लेन। ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगी। फिलहाल तो हम आपको आपके एनसीईआरटी में जितने स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये 3 स्टेप को कैसे समझ के याद किया जाए। याद तो आपने अभी तक कर ही लिया होगा, रट ही लिया होगा, लेकिन समझ के कैसे याद किया जाए पहले मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं वापस आपको एनसीईआरटी में लेकर जाऊंगी। उसके बाद जब हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपको इंटरेस्ट है कि हम फोटोसिंथेसिस से ज्यादा भी जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, नो एक्स्ट्रा करके, ठीक है, फॉर योर नॉलेज करके एक सीरीज बनाएंगे जिसमें हम एक्स्ट्रा चीजें डालेंगे। जिनको इंटरेस्टेड है वो सुने, जिनको इंटरेस्ट नहीं है और जिनको एक ही एम में बोर्ड में फुल मार्क्स लाना है, उनके लिए ये लेक्चर काफी है। जिनको इंटरेस्ट के लिए ज्यादा जाना है, उनके लिए मैं अलग से छोटी छोटी सीरीज बनाऊंगी। अब आ जाओ फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। एक बार बेटा आपको एम क्लियर है तो स्टेप्स चुटकियों में समझ में आ जाएगा। आपके एनसीईआरटी में 3 पॉइंट लिखा है, और अगर ध्यान से सुनेंगे कभी नहीं भूलेंगे वो 3 स्टेप क्या है, ठीक। अभी भी आप रट लिए होंगे, लेकिन आज आप समझेंगे और समझ के उसको लिखेंगे। ये जानने के लिए एक बार बैलेंस्ड इक्वेशन मैं फिर से लिखूंगी, दैट विल हेल्प मी। दिस विल बी 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, विल फॉर्म C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। मेरा एम क्या है बेटा, ग्लूकोज बनाना। अब हमारे को अपना एम एकदम क्लियर हो गया। इसके अलावा यहां पर हमको चाहिएगा सनलाइट, राइट, और इसके अलावा हमको चाहिएगा क्लोरोफिल। और हमारा एम तो एकदम ही क्लियर है हमारे लिए। एम क्या है हमारा, एम हमारा है ग्लूकोज बनाना। एंड हमें अच्छे से पता है कि ग्लूकोज के लिए कार्बन किससे आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑक्सीजन किससे आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से। वाटर से हमें केवल क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। ऑक्सीजन को हमको निकाल देना है। तो ये एम हमारा एकदम क्लियर है, ठीक है। तो आप चलिए, अब जब हमारा एम क्लियर है तो देखो कितना फटाफट आपको अब समझ में आएगा। पहला चीज हमको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें पूरा चाहिए, ठीक है। एंड जो वाटर है इसका हमको केवल हाइड्रोजन चाहिए। मुझे अभी भी याद है, मैं अपने हर लेक्चर में इस बात को बताती हूं। It is this question, you know, what is photosynthesis? It is this question which actually led my way into my second school in which I work, that is DPS. उसमें यही सवाल मेरा एंटर कर गया। I still remember, ऐसे मेरे इंटरव्यूअर बैठे थे, मैं यहाँ बैठी थी, यहाँ सारे पैनलिस्ट बैठे थे, प्रिंसिपल्स वह सब बैठे थे, और मैं बड़े अच्छे मूड में गई थी। मुझे कोई ऐसा था नहीं कि मुझे उस स्कूल को ज्वाइन ही करना है, मैं ऐसे ही चली गई थी। तो मुझे पूछा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, बताइए। तो मैंने उनको क्या बोला, मैंने उनको बोला फोटोसिंथेसिस इज द कुकरी शो ऑफ द प्लांट्स। अब एक्सटर्नल जो था पूछने वाला बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला क्या बोल रहे, कुकरी शो ऑफ द प्लांट्स। उस वक्त खाना खजाना संजीव कपूर का काफी चलता था। मैंने बोला आपने खाना खजाना शो देखा है ना, कुकरी शो, तो वैसे कुकिंग करके हम खाना बनाते हैं ना, तो प्लांट्स भी कुकिंग करते हैं। ऐसा थोड़ा ना कि आप और हम ही कुकिंग करते हैं, प्लांट्स भी कुकिंग करते हैं। तो वो मतलब तरीका, दिस इज द कुकिंग ऑफ द प्लांट्स, तो इट इज द कुकरी शो ऑफ द प्लांट्स। तो वो उनको बड़ा मजा आया, उन्होंने बोला इलैबोरेट। तो मैंने कहा अगर आपने कभी किसी कुकिंग शो को देखा होगा तो कुकिंग शो में सबसे पहले क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। अगर हमें आलू गोभी बनाना है तो पहले 1 किलो आलू लें, आधा किलो गोभी लें, और साथ में आप थोड़ा सा चम्मच भर तेल ले लें, थोड़ा सा गरम मसाला, आधा चम्मच नमक, सारा इंग्रेडिएंट बताता है। फिर हम सारे इंग्रेडिएंट को मिलाकर क्या करते हैं, खाना बना देते हैं, राइट। वैसे ही आप हमको फोटोसिंथेसिस में खाना बनाना है तो पहले हम आपको इंग्रेडिएंट बता रहे हैं। आपको ग्लूकोज बनाने के लिए पहले चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और पानी में से केवल क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। आपको कार्बन, दिस इज समथिंग लाइक आलू गोभी। आलू आपको पूरा चाहिए, पर गोभी में क्या चाहिए, केवल ऊपर वाला डंठल जो उसके होते हैं, नीचे के स्टॉक वो आप काट के हटा देने वाले। वैसे ही पानी को आप काट के हटा देने वाले, इसका केवल हाइड्रोजन लेंगे, ऑक्सीजन आपका उड़ जाए। वैसे आप गोभी का नीचे का डंठल क्या हो, हट जाओ, उसको गाय को खिला दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें केवल ऊपर का गोभी चाहिए। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज लाइक आलू, एंड वाटर का हाइड्रोजन इज लाइक द ऊपर पार्ट ऑफ द गोभी, ऑक्सीजन को हम लोग हटा देंगे, ठीक है। अब जब आपके रॉ मटेरियल रेडी हो गए तो आपको क्या चाहिए, कढ़ाई चाहिए जिसमें आप लेंगे। वो कढ़ाई कौन है, क्लोरोफिल। और उसको आपको गैस चाहिए जिसमें आप खाना पकाएंगे, दैट गैस इज योर सनलाइट। तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के हाइड्रोजन को
क्लोरोफिल नाम के कढ़ाई में सनलाइट नाम के गैस से पकाते हैं तो पकाने के बाद जो आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है वो है आपका ग्लूकोज। यही मैंने जवाब दिया। ये जवाब उनको इतना अच्छा लगा दैट इमीडिएटली दे सेड नो यू हैव टू ज्वाइन, बट दैट ईयर आई डिडंट ज्वाइन, बट लेटर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी एंटायरली, राइट? बट दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज आस्क्ड एंड दिस इज हाउ इट आंसर्ड। वैसे ही मैं आज आपको भी पढ़ा रही हूँ। सो आपको एकदम क्लियर कट है, आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पानी में से चाहिए हाइड्रोजन, और उसके अलावा आपको सनलाइट चाहिए, और इस सनलाइट को पकड़कर जैसे आपका जो गैस का लाइट है उसको कौन पकड़कर सब्जी तक ट्रांसफर करता है, कढ़ाई, वैसे यहाँ पर है क्लोरोफिल जिसकी मदद से आप ग्लूकोज बनाएंगे एंड कार्बन ऑक्सीजन एंड वाटर आपका बाई प्रोडक्ट जैसे बनेगा। ठीक है, तो आप देखो इसका सबसे पहला स्टेप क्या है। तो ऑब्वियसली द फर्स्ट स्टेप व्हाट डू यू नीड, यू रिक्वायर, 3 स्टेप में लिखा है आपके एनसीईआरटी में। सबसे पहले यू नीड टू ट्रैप द सनलाइट एंड यू नो दैट द सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल, एंड ये क्लोरोफिल जो सनलाइट ट्रैप करता है इसको वो क्या चीज में यूज करता है? पहला, इट यूजेस दिस क्लोरोफिल यूजेस सनलाइट सबसे पहले टू स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल so that the hydrogen can be separated for attaching with carbon dioxide to form glucose. So the sunlight is trapped by chlorophyll which helps in splitting of water molecules, which is used in splitting of water molecules. इससे water molecules आपके split होते हैं। ठीक है, this is the first step जो आपके NCERT में लिखा है। Then with the help of this energy, जब आपका ये हाइड्रोजन निकल गया, so with the help of this energy now what we are going to do is we are going to join carbon yes, first सबसे पहले the sunlight is trapped, ठीक है, and this is used for splitting of the water molecules. Then this water molecule this energy will be used for attaching hydrogen to carbon dioxide to form glucose. ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जब हम किसी भी चीज में हाइड्रोजन ऐड करते हैं या आपको कार्बन डाइऑक्साइड में क्या यूज करना है, एक बार मैं देखूं आपके एनसीईआरटी के 3 स्टेप्स क्या है। ओके, आई सी दैट लेटर। तो सबसे पहला है टू हार्नेस द सोलर एनर्जी, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। देन आई नीड टू यूज दैट एनर्जी टू स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज द सेकंड स्टेप। एंड ये जो हाइड्रोजन निकला इसको आई विल ऐड विद कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन will be added with carbon dioxide to make glucose, and you know that जब हम किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो आपके एनसीईआरटी में लिखा है रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म ग्लूकोज, क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड में पानी का केवल हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। सो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन योर एनसीईआरटी। सबसे पहला स्टेप लिखा है आपका अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको खाना पकाने के लिए रॉ मटेरियल्स के लिए गैस चाहिए, तो अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। देन दिस क्लोरोफिल विल कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो मैंने अभी आपको दिखाया। क्लोरोफिल पहले सनलाइट को लेगा, उस एनर्जी की मदद से वो क्या करेगा, पानी के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बाद में ठीक इस हाइड्रोजन को वो कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड करेगा, एडिशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन टू एनी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज रिडक्शन। सो दिस इज रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। इस रिडक्शन के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, जिस एनर्जी को सेकंड पॉइंट में ही डाल दिया है। ठीक, तो यहां लिखा है वी रिक्वायर एनर्जी फॉर टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कितनी बार बता दी हम आपको, आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि हम सोलर एनर्जी को जब कार्बन कार्बन बॉन्ड में ट्रैप करते हैं तो वी कॉल इट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, लेट मी राइट इट हियर, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करेगा, पहले तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है, इस वाटर को वो स्प्लिट करेगा। स्प्लिट करने के बाद हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड करेगा, ताकि हमारा ये जो सोलर एनर्जी है सनलाइट, इससे हम केमिकल एनर्जी यानी कि ग्लूकोज बना सकें। ठीक, एंड ये ग्लूकोज हम कैसे बनाते हैं, बाय एडिंग हाइड्रोजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन यू ऐड हाइड्रोजन टू एनी सब्सटेंस वी कॉल इट रिडक्शन। तो यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं लिखे हैं, हमने लिखा है रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। सो आई होप आपको ये 3 स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जब ये समझ में आ गया तो आई जस्ट वांट यू टू नाउ लुक एट द लास्ट पैराग्राफ आपके जो एनसीईआरटी में लिखा है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। आपके एनसीईआरटी में यहाँ जो लिखा है, आज का मेरा लास्ट टॉपिक है, these steps they may not
they need not take one after another immediately. For example, desert plants, they take carbon dioxide at night and prepare an intermediate. This intermediate से बाद में ग्लूकोज क्लोरोफिल की मदद से वो दिन के वक्त बनाते हैं। एक बार फिर से रीडिंग मार लेना खुद से। This is my last question. These steps of photosynthesis may not occur one after another. इसमें क्या लिखा है सुन लो, मैंने रीडिंग अभी मार दिया है, ठीक, पर इसमें लिखा क्या है ये आप सुन लो। So let me tell you, this is something very interesting. Class, this is do they occur one after another? ऐसे तो फोटोसिंथेसिस में आपको जितने भी स्टेप्स चाहिए, दैट मीन्स आपको सबसे पहले क्या करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम पकड़ते हैं, ठीक, फिर हम पानी लेते हैं, पानी में से हम हाइड्रोजन लेते हैं और ये सनलाइट को क्लोरोफिल ट्रैप करता है और ये क्लोरोफिल, ये जो सनलाइट को ट्रैप किया, इस लाइट को यूज करता है दो चीजों के लिए। पहला, स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर, सेकंड, एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू फॉर्म ग्लूकोज। ठीक है, नॉर्मली ये सारा एक ही साथ होता है दिन के वक्त नॉर्मल प्लांट्स में। और आपको पता है इन दोनों, ये जो दो रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट किससे लेता है, स्टोमाटा से लेता है, जो हम आपको अगले क्लास से पढ़ाएंगे। तो लीफ में ऐसे माइन्यूट अपर्चर्स होते हैं कॉल्ड स्टोमाटा, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। अच्छा, पानी किससे लेता है, तो रूट से लेता है, पानी रूट से लेता है, पर ये पानी जो एक्सेस पानी है, ये पानी लीफ से बाहर निकल जाता है थ्रू ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो दिन के वक्त क्या होता है, प्लांट कैसे मतलब खाना बनाता है दिन के वक्त कैसे होता है कि प्लांट है, यहाँ से नीचे सनलाइट है, सनलाइट की वजह से पानी अब्सॉर्ब होता है, फिर स्टोमाटा खुलता है, स्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, नीचे से पानी लेता है, दोनों और दोनों की मदद से ग्लूकोज बना लेता है। लेकिन डेजर्ट प्लांट्स में, वैसे प्लांट्स जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, डेजर्ट प्लांट में मेरे को एक टेंशन क्या है, यहाँ पर देखो समझ में आ जाएगा। मेरे को टेंशन ये है कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए स्टोमाटा खोलती हूँ दिन में, तो डेजर्ट में तो बहुत गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इट इज एक्सट्रीमली हॉट इन डेजर्ट्स। अगर डेजर्ट में मैं दिन के वक्त खोल देती हूँ स्टोमाटा कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, तो वेरी गुड, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल जाएगा, लेकिन वाटर का लॉस हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। यानी कि अगर हम डेजर्ट में स्टोमाटा नहीं खोलते, ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा चीजें हम सबको पहले मैं हटा दूं, ठीक, अगर हम डेजर्ट में, यहां पर देखो, अगर हम डेजर्ट में स्टोमाटा नहीं खोलते तो पानी मेरे पास बच जाएगा, इफ वी रिमूव ऑल दिस, तो मेरे पास पानी बच जाएगा, ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा क्योंकि स्टोमाटा से हम CO2 लेते हैं। और अगर स्टोमाटा खोल देते हैं, अगर स्टोमाटा क्लोज है, इट इज गुड फॉर वाटर, द वाटर विल नॉट go out, but it is bad for carbon dioxide. How will I take carbon dioxide? और अगर स्टोमाटा ओपन कर देते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए गुड है, हम आराम से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेंगे, पर वाटर के लिए बैड है। क्यों? तब वाटर निकल जाएगा, वाटर की कमी हो जाएगी, पर हमको तो दोनों चाहिए ना। खोलते हैं अगर तो पानी की कमी हो जाती है, बंद करते हैं तो CO2 की कमी हो जाती है, तो करें क्या? तो डेजर्ट प्लांट्स ने एक आइडिया निकाला, और डेजर्ट प्लांट्स ने क्या आइडिया निकाला सुनिए, उन्होंने ये आइडिया निकाला कि वो रात को स्टोमाटा खोल लेते हैं। दे ओपन द स्टोमाटा एट नाइट, दिस इज माय ओपन स्टोमाटा, एंड दे रात को CO2 ले लेते हैं खोल के, क्योंकि आपको पता है रात को डेजर्ट्स बहुत कोल्ड होते हैं, ठंडे होते हैं, तो अगर ठंडा रहेगा तो पानी लॉस नहीं होगा। आपको पता है पानी का लॉस कब होता है, जब गर्मी बहुत होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है वाटर का लॉस, ठीक। तो रात के वक्त ये CO2 लेकर इसके इंटरमीडिएट्स बना देते हैं, इसको पकड़कर रख लेते हैं, ठीक है। और दिन के वक्त यानी कि नाइट में द स्टोमाटा इज ओपन एंड दिन के वक्त दे क्लोज द स्टोमाटा ड्यूरिंग डे, ठीक। अब स्टोमाटा बंद कर दिए, कोई तो भी दिक्कत नहीं है क्योंकि हम तो CO2 रात को ही लेकर बैठ गए, ठीक। एंड फिर दिन के वक्त हम पानी लेते हैं और इस पानी की मदद से पानी और CO2 को मिलाकर फिर हम आपका ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक। तो वही लिखा है, इन डेजर्ट प्लांट्स द टू प्रोसेस डज नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दे ओपन द स्टोमाटा एट नाइट, रात को CO2 ले लेते हैं बेटा, ठीक है। आई वुड लाइक टू एक्चुअली क्लियर द बोर्ड सो दैट, इतना खचपच हो गया यहाँ पर, ये CO2 रात को ले लेते हैं, ठीक है, और दिन के वक्त फिर स्टोमाटा नहीं खोलते तो पानी नहीं उड़ता, रात को CO2 लेकर इसको इंटरमीडिएट बनाकर रख लेते हैं, भाई आखिर CO2 को स्टोर करना पड़ेगा ना रात भर, तो इंटरमीडिएट के फॉर्म में कर लेते हैं, दिन के वक्त स्टोमाटा बंद कर देते हैं ताकि पानी नहीं उड़े,
पानी भी मिल जाता है, दिन के वक्त ही आपको सनलाइट मिलेगा क्योंकि सनलाइट चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए, क्लोरोफिल तो है ही, और इस तरह से वो ग्लूकोज बना लेते हैं। वही आपका वहां पर लिखा था कि does these two processes that is taking of CO2 and H2O, जो दो चीजें हम लोग को लेनी पड़ती है बाहर से ग्लूकोज बनाने के लिए, क्या ये हमेशा साइमल्टेनियसली होता है? मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में होता है, पर डेजर्ट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। डेजर्ट प्लांट रात को CO2 लेते हैं, दिन को वाटर लेते हैं, और फिर दिन के वक्त सनलाइट की मदद से ग्लूकोज बनाते हैं, राइट? सो विद दिस a major part of how the plants they make food through photosynthesis I have already taught you, but अभी भी plant nutrition में कुछ चीजें बची हुई हैं, जैसे now what is the site, कहाँ एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होता है वो, प्लस सारे रॉ मटेरियल्स को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, तब जाकर आपका प्लांट न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा। इसके लिए मुझे एक और क्लास चाहिए, सो इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लांट न्यूट्रिशन। यू हैव बीन सीइंग कि मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, बट कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रही हूँ। नाउ दैट माई चैप्टर इज ओवर, आई विल टेक 2 minutes टाइम। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे 10th के लेवल पर टीचर्स 11-12 का लेवल पढ़ा देते हैं, मैं इसके थोड़े अगेंस्ट हूँ। मुझे लगता है 10 में कम से कम 10 तो पढ़ाओ, बच्चे को 10 का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता और हम बाहर से पढ़ाते हैं। एटलीस्ट आपने जो अभी तक पढ़ा, आप रट रहे थे, कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन कैसा होता है, आई बिलीव मोर इन दैट। आप 10th में 10th ही पढ़िए, बहुत ज्यादा मत पढ़ने की कोशिश करिए, पर 10th तो जानिए। जब आप 11th में आते हैं और हम बोलते हैं कि हमको बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बताओ कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन किससे मिलता है, 90% बच्चे बोलते हैं मैम ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलता है वाटर से। ठीक, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज 10 में 10 ही पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, पर रटिए नहीं, समझिए। और अगर आप इतना समझ गए तो यू विल एंजॉय। ये आपको 11, 12 एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मदद करेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रट्टाफिकेशन से ज्यादा कॉन्सेप्ट काम आता है। एंड मोर देन दैट ये आपको एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड रटने में मदद करेगा, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा रटने में। ठीक है, फटाफट आपको याद हो जाएगा। मुझे लगता है आधे से ज्यादा चीज तो आप भूलेंगे ही नहीं एग्जाम तक, एंड उससे आपको बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। पहले बोर्ड में तो अच्छे मार्क्स आए, तब ना 11-12 में साइंस मिलेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो वी विल नाउ मूव ऑन टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन आई जस्ट हैव 2 रिक्वेस्ट फ्रॉम यू। 1, एक बार वीडियो को फिर से देखिए धीरे धीरे करके, इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें आपको लगी उसको आप नोट करके पेज में लिखकर एनसीईआरटी में स्टेपल करें और अभी का अभी इतना पूरा याद कर लें। And second, if you are new to my channel, you please subscribe it, press the bell, icon if you think this lecture was good, और आपको जो भी लगा ये पढ़कर कुछ नया लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, please put it in the comment box and share it with as many of your friends so that maximum children they can be benefited, not because I'm teaching biology, it is just because I'm teaching with concept. I want to change the idea that bio रटने वाला सब्जेक्ट है, ताकि सबका थोड़ा बायो के लिए माइंड फ्रेम चेंज हो। With that I bid you goodbye today. So खुश रहिए, मस्त रहिए, and then we'll meet in the next class with the remaining part of the chapter. Thank you so much.